Move on, there are plethora of funds available in the market to invest your hard-earned money, but how do you assess which is the right fund for your portfolio? What are the criteria that one should look at? To help you navigate through this maze, we have on board Amol Joshi, founder Plan Rupee Investment Services. So also, in case you want to send us your portfolio queries, you can WhatsApp the questions on 865-797-4571. You can also email us your queries on the Money Show at etnow.tv. Welcome to the show, Amol, and good evening. We have the first viewer's query ready with us. Tarun Sinha wants to ask this question to you. He's emailed this to us and he's been investing 3,000 in mutual funds and 5 mutual funds. Time horizon is 16 to 18 years. He has SBI FlexiCap, SBI Contra, SBI Hybrid, SBI Multicap, SBI Small Cap, and he's expecting 1 CR in 15 years with this investment, and he also wants to start his SIP in anything where he can get a corpus around 2 crores. He can invest 30,000, he says. He's been investing in PPF. He has an LIC policy about which right now we don't have any details, and this investment will give him 10 lakh by 2026. Okay, keeping that aside, let's talk about having all the funds from one AMC, that is SBI. Right. Good evening, Kavita and Tarun. You have asked the question about opinion about SBI Mutual Fund. SBI Mutual Fund also happens to be the largest mutual fund in India. Brand is very well recognized. There is no introduction required. But suffice to say, one of the very first principles of personal finance also is a age-old wisdom that you do not keep all your eggs in one basket. It's not that other mutual fund houses do not have comparable or good or better mutual fund schemes available. So my first suggestion, SBI, despite of being largest and you have chosen all the schemes from there, my first suggestion would be to diversify in other mutual fund houses, other schemes as well. Number one. Number two, Kavita, this is a very interesting question. Tarun has 15,000 rupees of SIP per month, and over a 15 years, he wants to create a 1 crore rupees of corpus. Why I said interesting is because there is something, a rule of thumb, there is something rule called as 15-15-15. So if you invest 15,000 rupees per month for 15 years, and if you get a 15% CAGR, you would accumulate a 1 crore rupee corpus. Now, in my opinion, 15% is very, very aggressive. I would rather go with 12% CAGR over a long period of time as well. And with this, Tarun, you will be able to accumulate 71 lakh rupees. If you want to reach a goal of 1 crore rupees, start with 15,000, but increase it by 7% per annum. Your SIP should go up by 7% per annum. In simple language, you can also call it SIP topper. And last but not the least, to accumulate 2 crore rupees, you'll again have to invest, in addition to this 1 crore, you will again have to invest a 30,000 rupee SIP per month, with a 7% annual top up for next 15 years. Quickly, for a 30 and 15, 45,000 rupee SIP, my suggestions to you are 15,000 rupee SIP in SBI Contra, 10,000 rupees each, right? So next 3 schemes, 10,000 rupees each in HDFC Large and Mid Cap Fund, Motilal Oswal Mid Cap Fund, and Nippon Small Cap Fund. We are building a kind of aggressive portfolio for you since you have a 15 years of long-term horizon. Your PPF contribution, PPF investments can continue as your debt or asset allocation. All right, we move on. We have Mr. Shinde from Nashik on the phone line with us. Good evening, sir. How are you doing? I'm good. Can I speak in Hindi, मैम? बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, बताइए. अच्छा मैम, मैंने 10 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद जनवरी में SBI म्यूचुअल फंड रेगुलर में लगाई थी. ठीक है सर, आपने पूरे 10 लाख SBI हाइब्रिड में लगा दिए हैं 3 साल के लिए. कि आपको किसने रेकमेंड किया सर? एक्चुअली मैं ऐसे किसी बंदे से पूछा था. तो वो शख्स क्या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर था? आया SBI से थे वो लोग. अच्छा, ये बताइए मुझे, ये आपने कहा कि आप रिटायर्ड हैं, है ना? यस मैम. तो आपने ये 10 लाख रुपए तो अपनी सर्विस के दौरान जमा किए होंगे? यस मैम. तो अब इन 10 लाख में से क्या आपको रेगुलर इनकम भी की ज़रूरत भी है कि वो आपने सुनिश्चित किया हुआ है कि आपके पास पेंशन या और कोई ज़रिया है कमाई का? क्वार्टरली मुझे 6,000 रुपए मिल रहे उसमें से मैम. अच्छा, तो मतलब ये 10 लाख में से भी आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है?
यस सर। तो कितनों की जरूरत होगी? जरूरत तो वैसे मुझे मंथली बताया था, बट वो क्वार्टरली पे कर रहे हैं अभी, हम्म। तो मैं अभी उसी में ही चल रहा हूँ। आपकी एक्चुअल नीड कितनी है मंथली? मंथली नीड तो मेरी वैसे कम से कम 20,000 की। 20,000 है। ये 6,000 आपको कहाँ से मिल रहे हैं सर? वो SWP से, उससे उसी इसी में से म्यूचुअल फंड SWP से ही किया है? इसी में से किया है? हाँ जी मैम। यस यस। निवेश के कितने समय के बाद SWP किया? उसी समय बताया था वो, एवरी 3 मंथ आ रहा है वो। ऑलराइट, चलिए कोशिश करते हैं आपकी मदद करने की जितना हो सके। अमोल, तो कविता, इन्होंने शिंदे जी ने सवाल जो पूछा है, जी। उन्होंने पूछा है कि 10 लाख रुपए मैंने डाला है तो मुझे 3 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। शिंदे जी, 3 साल के लिए मेरे हिसाब से इक्विटी हाइब्रिड, जिसमें इक्विटी की मात्रा इस म्यूचुअल फंड में 65% और उससे भी ज्यादा रहती है, मेरे हिसाब से 3 साल ये काफी कम कालावधि है। लेकिन अगर आपका मैं सवाल उसका अगर जवाब देना चाहूं, अगर आपको 8% पर एनम 8% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आपकी 10 लाख रुपए की राशि बढ़ के 12,60,000 रुपए हो जाएगी 3 साल में। और अगर आपको इसमें से 10% प्रति वर्ष का अगर इसमें से मुनाफा या गेन होता है तो आपकी 10 लाख रुपए की राशि बढ़कर 13,31,000 हो जाएगी 3 साल के बाद। लेकिन आपने ऑलरेडी SWP किया है 6,000 रुपए प्रति क्वार्टर के हिसाब से, आपका लगभग 24 लाख रुपए, यानी लगभग 2.5% आप उसमें से ऑलरेडी निकाल रहे हैं। तो उतना पैसा और उसके ऊपर होने वाली 3 साल की ग्रोथ, एक बार आपको किसी प्लानर, एडवाइजर, या अगर आपने बैंक से अपने ये सजेशन लिया है, उन्होंने आपको ये फंड के बारे में बताकर अगर उन्होंने ये आपको फंड सेल किया है, तो एक बार उनसे बैठ के कैलकुलेशन जरूर समझ लें। लेकिन 8% और 10% के अनुसार 12,60,000 या 13,31,000 की राशि आपकी ग्रो होके हो सकती है 3 साल बाद। अमोल, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि जी। अगर ये किसी के पास गए, उससे पहले अगर आपके पास आए होते 10 लाख रुपए लेकर और कहा होता कि मुझे SWP के ज़रिए 20,000 रुपए चाहिए या मिनिमम जितना हो सकता है हर महीना, तो आप इनको निवेश की स्ट्रैटेजी क्या देते? बिकॉज आई अंडरस्टैंड यहाँ पर इनसे थोड़ी सी चूक हुई है, शायद जानकारी नहीं, उसके अभाव में हुआ होगा। अब तो खैर जैसा आपने इनको सलाह दिया इनको करना ही है, लेकिन आपके पास अगर ये आते तो आप उन्हें क्या गाइड करते, किस तरह से आप उन्हें निवेश करने की सलाह देते? कविता, एक जैसे कि हमने पहले सवाल के जवाब में कहा कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज राइट एक्सपेक्टेशंस। पहले सवाल में 15% और 12% की हमने बात की, बिल्कुल वही मुद्दा यहाँ पे भी लागू होता है, एक्सपेक्टेशन। मैं अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन बताऊं, 20,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से इनकी साल की विड्रॉल होगी 2.4 लाख, यानी 2,40,000, 2.5 लाख मान के चलिए। 10 लाख में 2.5 लाख, यानी इनका 25% साल का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी हालत में कोई भी म्यूचुअल फंड इनकी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। ये सबसे पहली बात मैं उनको बताता। राइट एक्सपेक्टेशन सेटिंग करने के बाद में ही हम फंड की तरफ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाते। लेकिन अगर इक्विटी हाइब्रिड में भी अगर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर सबसे पहले मैं उनका 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, तभी हम उनको ये सलाह देते। रही बात मंथली रिक्वायरमेंट की, हमने ऑलरेडी बता दिया है 20,000 रुपए किसी भी हालत में आपको इसमें से 25% का पर एनम रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हो नहीं सकता। तो एक बार आप अपने अदर एसेट्स जो है, इनके अगर कोई दूसरी FD है, इनके अगर कोई दूसरे मतलब रिटायर अगर हो चुके हैं, तो इनका कोई एक प्रोविडेंट फंड का या के ग्रेचुइटी लिए सुपरएन्युएशन कुछ आया अमोल, है। 20,000 हर महीना पाने के लिए इन्हें कितना और पैसा डालना होगा? अगर मैं 8% के हिसाब से अगर बात करूं तो लगभग इनको 30 लाख रुपए, अगर 8%। अब आप यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं ये 12% SIP शुरू कर सकते हैं? कविता, मेरे ख्याल से अगर ये रिटायर्ड है तो शायद इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ये SIP यानी पैसा इन्वेस्ट करने की स्टेज में नहीं है, तो SIP में सलाह नहीं दे सकता जहां तक जानकारी अपने पास है अभी मौजूद। लेकिन 30 लाख रुपए इनको लगेंगे, तब जाके 8% के SWP से 20,000 रुपए हर माह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सलाह फिलहाल दी जा रही है शिंदे जी आपको। कहा जा रहा है कि एक बार आप फाइनेंशियल प्लानर से भी कंसल्ट करें, क्योंकि शायद यहाँ पर थोड़े बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन थैंक यू सो मच अमोल फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे एंड हेल्पिंग आवर व्यूअर्स विद देयर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो क्वेरीज। एंड with that, it's a wrap on the Money Show today, but we will leave you with our WhatsApp number and email ID where you need to send us your portfolio related queries. Thank you so much for watching. Goodbye.